So welcome back. This is lecture 22 of shares and debentures for company accounts and audit, CMA Intermediate, June 2022. So ये हमारा lecture 22 shares and debentures का. चलिए तो हम buyback में थे. So we had seen all the rules of buyback, that is sections 68, 69, 70. ये हमने देखे detailed conditions. Okay. So I will revise these conditions one for you later on. ठीक है. So जिससे it will be very easy. जितना हो सके आप try to give a आपको कम डेटा के साथ visual impression देने की मैंने कोशिश किया हूँ. Okay. So we will revise this once again later. ठीक है. So चलिए now disclosures also we had completed. ठीक है. All disclosures. Then we were doing prohibition of buyback in certain conditions. ये point हम कर रहे थे. Okay. So ये बोले हमने कि there can be no buyback through any subsidiary company including own subsidiary company. Okay. So section 70 has said no buyback through any subsidiary company, no backdoor entry. जो भी हो आमने सामने holding company की तरफ. Okay. So or there should be no buyback through any investment company or group of investment company. Okay. And then point C is what we had already seen. आपके जो all those credit things, no, which we had seen in an earlier point: deposits, term loans, debentures, preference shares. Okay. इनके सारे interest और preference shares के dividend plus these basic amounts जो उनके capital amounts. If any default is made on repayment or payment of this, ठीक है, then you cannot do buyback. But if you have remedied it, जैसे जो आपने नहीं दिए थे कुछ, फिर बाद में आपने उसको पे कर दी, paid it from that date. Okay, if 3 years are over, after that you can do buyback. ठीक है. So say for 3 years buyback आपका रुक जाता है. So इसीलिए भी companies have to be very careful about dealing with creditors, their interest, preference shares, their dividend. Okay. Last point is no buyback. Buyback नहीं कर सकते if not complied with. ठीक है. Sections, ये 4 सिर्फ sections आपको दिए हुए हैं क्योंकि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहते. ठीक है. So 92 basically stands for annual return के लिए 92. और 123 is declaration and payment of dividend, और ये 127 है is failure to pay dividend. ठीक है. So ये चार आपको they have not given you what these stand for, क्योंकि उसका ही मतलब है कि ये उतना important नहीं है आपके लिए. ठीक है. इसलिए एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया स्टडी मटेरियल में. Okay. And 29 is financial statements. 129 is financial statements. So ये 4 सेक्शन में अगर को आपने कंप्लाई नहीं किए, you have not complied, then you cannot do buyback. ठीक है. ये है, these are the conditions of what? Prohibition of buyback in certain circumstances. Next हमारा SEBI guidelines regarding buyback है, जो मैंने बोला बाद में करेंगे. Otherwise it will be too much now. Together with the section 68 to 70 which we have done, इसके साथ नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे. But you will find this a lot more easier once you know section 68 to 70. Okay, ये हम देख लेंगे. It's quite simple, बस उतना ही है जितना I have shown you now. Then there is advantages of buyback, ये भी देख लेंगे बाद में उसके साथ ही. Okay. Now let's go to accounting for buyback. So what does accounting say? कैसे अकाउंट करते हैं हम? ये हमारा this is our core field, हम इसमें आए हैं, right? We have now come to the real field. Buyback can be done out of free reserves, security premium account, ये हमने पहले देख लिए थे. Proceeds of issue of shares or other specified securities. No buyback out of an earlier issue. जैसे कि ये पॉइंट मैंने आपको ही पहले ही समझा दिया था कि जो बायबैक है, ठीक है, आपके कोई अर्लियर इशू के पैसे आपने बचा के रख लिए, उसके बाद आपने फ्यूचर से बायबैक कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए है कि एज आई सेड बायबैक इज फॉर आपका कैपिटलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए. ओके. So this line is your earlier issue of share capital. आपने सेम टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इशू की है. ठीक है. अब आप इसको इससे बदल रहे हैं या उसको इससे बदल रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाई बायबैक इज डिजाइन्ड, राइट?
आप इससे इसको रिटर्न करो या इससे इसको रिटर्न करो, उसके लिए नहीं है, इट इज फॉर एड्रेसिंग समथिंग एल्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट टेल्स यू, ठीक है। सो इवन जो नॉर्मली जो आपका जो थर्ड पॉइंट होता है ना, जो प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह जो करते हैं, नॉर्मली व्हाट कंपनीज डू इज, कंपनीज विथ हाई रिजर्व्स दे गो फॉर बायबैक, हाई फ्री रिजर्व्स रहते हैं ना, दे गो फॉर बायबैक। सपोज उनके पास 20K है, दे नीड से अनदर 4K कम पड़ रहा है, तो ये 4K का दे इश्यू न्यू शेयर्स, ऐसा नॉर्मली होता है। ओके, इट्स नॉर्मली बायबैक जो होता है वो हाइब्रिड मोड में होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक शेयर के लिए इश्यू कर दिए उसको टोटली दूसरे शेयर को रिप्लेस कर दिए, दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ बाइंग बैक। ओके, देन लास्ट इज शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। ओके, राइट, सो शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप इज सेम फॉर बोनस एज वेल एज बायबैक। और बोनस में मैंने क्या बोला था आपको, दीज 2 पॉइंट्स आर सेम, थर्ड इसमें बस देयर इज CRR। ओके, CRR अकाउंट। ओके, सो रिमेंबर दैट, बिल्कुल दिमाग में ये चीजें कंफ्यूज करती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, बायबैक और बोनस में कभी ना कभी आपको कंफ्यूज होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो नाउ अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है, ठीक है, चलिए ये पहले लेट मी रीड दिस, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, CRR अकाउंट is section 69, you buy back out of free reserves. Normally, as I said, you buy it back out of free reserves. So क्या करना है, ट्रांसफर सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू टू CRR अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डिटेल्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। ओके, सो अभी यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको आई जस्ट टेल यू वन थिंग। अच्छा, ये आपका बैलेंस शीट है हियर। सो क्या होगा आपका, से योर रिजर्व बैलेंस इज 100 ईयर, ठीक है, दिस इज योर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ठीक है, कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहा। तो योर रिजर्व बैलेंस इज 100, सो व्हाट यू डू इज, ठीक है, सो ये 100 है, सो एक्चुअली ये 100 के एसेट्स यहाँ पे होंगे रिप्रेजेंटिंग दिस 100, से फॉर एग्जांपल ऐसी एसेट्स लिख देता हूँ। ओके, एसेट्स व्हाट, सो बिकॉज रिजर्व है तो समझ लीजिए उतने परमानेंट एसेट्स नहीं होंगे, तो मान के चलते हैं। ओके, नाउ शेयर कैपिटल में यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन मोर परमानेंट एसेट्स, ठीक है। सो व्हाटएवर इज योर शेयर कैपिटल हियर, ठीक है, नाउ शेयर कैपिटल लेट मी से इज 2000, ठीक है। सो शेयर कैपिटल, और चलो छोटा फिगर लेते हैं, लेट अस से 500। ओके, दैट शेयर कैपिटल इज 500 now. For all 500 you will have some kind of permanent assets होंगे इसमें, बिल्डिंग, करेक्ट, जनरल बोल रहा हूं मैं। ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, ठीक है। सो नाउ इफ यू आर बाइंग बैक 80, ठीक है, तो अब ये बताना जरूरी है 80 को आप CRR अकाउंट में क्यों डालते हो। ओके, व्हाई डू यू पुट दिस 80 इन CRR अकाउंट, ये रिजर्व भी 100 यहीं पे है आपके, इट्स इन द लायबिलिटी साइड। ओके, और दिस इज आल्सो इन द लायबिलिटी साइड, ये भी 100 है, ये भी 100 है, करेक्ट। सो इसमें से CRR में क्यों हम निकाल के डालते हैं, रीजन इज हम ये बोलना चाह रहे हैं अभी कि ये जो रिजर्व बैलेंस है जनरली थोड़े करंट नेचर के एसेट्स में इन्वेस्टेड होंगे, राइट, इट्स प्रॉफिट अक्यूमुलेशन, एंड दीज आर ये परमानेंट एसेट्स में शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर बाइंग बैक 80, दैट मींस योर शेयर कैपिटल नाउ it will become from 500, it will become how much, 420 हो जाएगा। ओके, 80 का अगर आपने बायबैक कर लिए, शेयर कैपिटल विल बिकम 420, राइट, बट आपके परमानेंट एसेट्स से अभी 500, तो इसीलिए आप जो है ये रिजर्व को 80 और 20 में से स्प्लिट करते हो। ओके,
and then you show this reserve like this. That is what transfer of CRR means. तो अब ये CRR जो है ना ये बता रहा है कि ये परमानेंट एसेट्स में, just to show that these things are invested in permanent assets. तो मैंने आपको पहले बोला था, आपको याद होगा कल के या परसों के लेक्चर में, that CRR में as such liquid money नहीं रहता है करके. We will see later on what I told you. ठीक है? So this is the reason CRR में कुछ permanent नहीं रहता है, because it basically invests your, it basically represents your long term capital. ठीक है? तो फिर आपका जो रिजर्व जो बच जाता है वो सिर्फ 20 बच जाता है आपका. ओके, इसीलिए एक्चुअली सीआरआर को जो है ना, आप कोई भी चीज को, किसी को कैश में फंड करना है, कुछ करना है, तो आप सीआरआर को यूज नहीं कर सकते. ओके, गॉट द पॉइंट. एक जनरल लॉजिक उसमें आपको बता रहा हूं उसका. ठीक है, ओके. सो right, so now details should be disclosed in the balance sheet. Disclosure part you will see in the next chapter. सारे disclosures how you have to do balance sheet में, सब as per rules है, you have to follow that. Schedule 3, it's mostly regarding presentation. Okay, now चलो, now determination of quantum of buyback जो है ना, this is like related to your SEBI rules. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हम देख ले, हम विल डू दिस अलोंग विद सेबी रूल्स. छोटा सा पार्ट है एक्चुअली. अगेन यू कैन सी वो आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1, ऑल दोस थिंग्स, ये 25% की बात कर रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट यू नो, बट थोड़ा सेबी रेगुलेशन का भी इम्पैक्ट है इसमें. ओके, सो ये वी विल जस्ट डू द सेबी रेगुलेशंस और फिर मैं आपको बताऊंगा ये पार्ट. बस इतना ही है आपको. ठीक है, इसलिए आपको ऐसा फिलहाल के प्रॉब्लम से हमको नहीं चाहिए दिस थिंग्स. ओके, और जैसे दिख रहा है ऐसा नहीं है, इट इज वेरी सिंपल. सो हम इसको आई एम पार्किंग इट फॉर नाउ. ठीक है, ये हम जब से भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अलोंग विद दैट विल डू दिस. अब देखिए, अब फ्री रिजर्व तो आपको मालूम है इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू रिजर्व्स. ठीक है, पर एक्सक्लूड्स ऑल कैपिटल रिजर्व्स इन शॉर्ट यू कैन से. ठीक है, सो नाउ अब हम आ रहे हैं बायबैक के जर्नल एंट्रीज. ओके, सो 4 जर्नल एंट्रीज. ठीक है, ओके, व्हेन यू हैव शेयर्स फॉर बायबैक तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉरफीचर में कैंसिल हो जाता था, यहां भी कैंसिल हो रहा है, यू आर बाइंग इट बैक, व्हिच इज व्हाई यू विल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन. इसमें भी वही लॉजिक है. ओके, you start with equity share capital debited. Now premium of buyback is a loss which we have to pay. Buyback premium अगर दे रहे हैं normally जो दिया जाता है. Okay, that's why buyback is beneficial to shareholders in normal cases. So premium on buyback debited to equity shareholders. So equity shareholders बोलो आप, ये shares bought back account, both are same. ठीक है, the first thing is आप शेयर कैपिटल कैंसिल कर दो, जो प्रीमियम देना है उसको डेबिट करके यू विल क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ओके, और ये जो प्रीमियम है, ठीक है, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंस, ये प्रीमियम इज अ कैपिटल एक्सपेंस. ठीक है, सो दैट यू हैव टू चार्ज टू कैपिटल रिजर्व्स फर्स्ट. ठीक है, आपके पास अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसको डेबिट कर लो पहले. ठीक है, या कोई और कैपिटल रिजर्व्स इन कैश है तो यू कैन यूज दैट आल्सो, बट सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करो और फिर बचा अमाउंट यू कैन यूज रेवेन्यू रिजर्व्स. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट यूज, लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो आप, ये कैपिटल लॉस माना जाता है. ठीक है, दिस इज कैपिटल लॉस. सो इफ यू हैव कैपिटल इनकम अकाउंट्स, यूज दैट फर्स्ट. ठीक है, सो बेसिकली यू विल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, debit general reserve, premium to buyback. So what will happen? Premium on buyback will get cancelled now. ठीक है, इसका काम हो गया अभी पूरा. So now, okay, और क्या होगा आपका, जितना प्रीमियम आपने दिए हैं, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व इन टोटल उतने ही अमाउंट से कम होगा जितने अमाउंट से आप प्रीमियम दे रहे हैं टोटल. करेक्ट? ठीक है, देन नेक्स्ट इज जो हमने सीआरआर अकाउंट. सीआरआर जो है
इसमें कुछ फ्लो नहीं है. ओके, जैसे हमने आई हैड शोन यू इन दैट एग्जांपल, राइट? 100 became 20 plus 80 in the same liability side. Okay, so for CRR account, this is the entry transfer to CRR. You can do it as the last entry also. ठीक है, ये इंटरनल एंट्री है. ठीक है, इसमें आप किसी को पैसे दे नहीं रहे हो. ओके, यू आर नॉट पेइंग एनीवन. सो रिजर्व्स डेबिटेड, P&L डेबिटेड, यानी रेवेन्यू रिजर्व्स. ये रेवेन्यू रिजर्व से ही जाएगा. ओके, the CRR will go through revenue reserves only. ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे कि रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू CRR अकाउंट. ओके, दिस विल बी योर एंट्री फॉर CRR अकाउंट. ठीक है, तो इसमें बस क्या हो रहा है, हमने वो जो वहां पे जो देखे हमने 100 to 20 and 80, करेक्ट? दैट इज द थिंग हैपनिंग हियर. देयर इज नो फ्लो. So this entry you can also do at the end. ये एंट्री का हमेशा आप आखिरी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और ये है बायबैक. so बाकी सारे एंट्रीज एक्सटर्नल है. ओके, कहीं ना कहीं किसी को देना है, लेना है, दैट्स सब. दिस इज इंटरनल टू अस. नाउ लास्ट इज जो आपने व्हाट यू हैव टू पे बैक. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिटेड, आल्सो कॉल्ड शेयर्स बॉट बैक अकाउंट, जो भी नाम आप यूज करो, टू बैंक अकाउंट. ठीक है, दीज आर द 4 एंट्रीज. समझ गए एंट्रीज आपको? अंडरस्टूड दीज एंट्रीज? Yes, sir. Yes. ओके, सो चलिए अभी नाउ वी विल डू सम कपल ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स बेसिक इसके ऊपर. जस्ट ये एंट्रीज दिखेंगी, इसमें और कुछ नहीं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन योर स्टडी मटेरियल, CMS स्टडी मटेरियल. X Limited buybacks its own 2 lakh 2 lakh equity share of 10 each at par. ठीक है, so 2 lakh shares at 10 each ने पार किया, पार पे बाय किया है. ठीक है, the company has, एक मिनट, I'll have to just इसको नीचे लाता हूँ, 1 minute. Okay, कंपनी has sufficient profits otherwise available for dividend. जनरल रिजर्व में इनफ पैसे हैं, उतना बता दिया आपको. ओके, नो फ्रेश इज मेड, नो फ्रेश इश्यू इज मेड फॉर दैट पर्पस. ठीक है, फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं पड़ी. शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, जर्नलाइज. ओके, तो क्या करेंगे इसमें? देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड टू बैंक. ऐसा डायरेक्टली नहीं करेंगे. अब you should do equity share capital debited to equity shareholders account and equity shareholders account debited to bank. Okay, इसमें जैसे हमने journal entries में what we have seen, right? We will do it like that. Equity share capital debited to equity shareholders account, equity shareholders account debited to bank. ठीक है, यहाँ there is no question of premium on redemption, premium on buyback नहीं है यहाँ पे. Okay, and then next हमारा ट्रांसफर रहेगा, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू CRR अकाउंट 20,000. दैट्स ऑल. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. सिंपल था ये बिल्कुल. नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी देखिए, थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे. यहाँ शेयर्स यहाँ पे बस पार्टली पेड अप, और कुछ नहीं. ये इस कंपनी के लिए बायबैक करना है 2 लाख शेयर्स. ठीक है, फेस वैल्यू 10 each, सेम है, नो डिफरेंस. अब 8 इज पेड अप. अब जनरल रिजर्व बैलेंस यहाँ पे बता दिया 50 lakhs, दैट इज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट. आपका जनरल रिजर्व बैलेंस है तो यू विल यूज इट. ठीक है, ऐसा नहीं है जनरल रिजर्व बैलेंस है तो कंपनी न्यू शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है, बायबैक की कर सकती है. ठीक है, अथॉरिटी है उनके पास. ओके, बोर्ड अगर इफ द बोर्ड हैज sufficient appropriate conditions for that, then वो बोल सकते हैं कि will issue because of this reasons. जैसे मैं बोल रहा हूँ, valid reasons रहने चाहिए उनके. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस यानी ये शेयर होल्डर्स को मैं बाहर करूंगा, नए को लेके आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, राइट. सो नाउ जनरल रिजर्व इज 50 lakhs और ये कितना है 2 lakh into 10, यानी अभी तो 8 है, 2 कॉल अप करेंगे हम, so then it will become 20 lakhs in sufficient funds, so no problem.
सबसे पहले कॉल करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट, 4 lakhs 4 lakhs, ठीक है, 2 into 2 lakhs, दिस ऑल यू नो। इसमें ये सब चाइल्ड्स प्ले है भी अपने लिए, राइट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कॉल कर दी, ये फाइनल कॉल कर दिए। देन हम ये एंट्री करेंगे, बाय बैक वाली एंट्री कर देंगे सीधा सीधा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, 20 लाख 20 लाख हो गया दोनों केस में। ओके, लास्ट में सीआरआर में कर लेंगे, जीआरआर डेबिटेड टू सीआरआर, सॉरी जनरल रिजर्व डेबिटेड टू सीआरआर, 20 lakhs खत्म, राइट, सिंपल, ठीक है, सिंपल टिल हियर। Yes, sir. एक काम करते हैं, एक और प्रॉब्लम हम कर लेते हैं अभी, तो फिर बाद में देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम सेज नाउ शेयर्स आर बॉट बैक एट प्रीमियम, ठीक है, द शेयर कैपिटल ऑफ बीटा लिमिटेड कंसिस्ट्स ऑफ 1 lakh shares of 10 each, 25,000 preference shares of 100 each, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, 2 शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑल आर फुल्ली कॉल्ड अप, यानी हमारे लिए फुल्ली पेड अप हो गया, ओके, ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप यानी ड्यू एंट्री हो गई है, सो देन वी आर फाइन, ठीक है, पैसे भी मिल गया होंगे उनको बेसिकली, तभी बाय बैक कर रहे हैं, because they cannot do buyback unless shares are fully paid up, correct. Security premium account shows a balance of 40,000, ठीक है, and GR shows a balance of 7 lakhs, ठीक है, GR बैलेंस है आपका 7 lakhs, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 40,000, ओके, कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 12 each, 12 मतलब 2 प्रीमियम देना चाह रहा है, कंपनी वांट्स टू गिव अ प्रीमियम ऑफ 2 rupees, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे बाइंग बैक इक्विटी शेयर्स, यानी आपका जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कोई रोल ही नहीं है, ओके, प्रेफरेंस शेयर का तो कोई रोल ही नहीं है, ओके, सिर्फ इक्विटी का है, ओके। सो नाउ चलिए हम देखते हैं कैसे करना है, 20,000 बाय करना है 12 each, 2 lakhs 20,000 into 10 जो है कैपिटल कंपोनेंट चाहिए 2 lakhs, ठीक है, और जनरल रिजर्व है 7 lakhs, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं, करेक्ट, 2 lakhs, और जो 2 है 40,000 दैट इज प्रीमियम, सो प्रीमियम में अब इफ यू हैव अ कैपिटल रिजर्व अवेलेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से लेंगे पहले, ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे और कुछ नहीं। अगर 40,000 के ऊपर होता तो बाकी अमाउंट वी कुड हैव टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व, okay, if it would have been more than 40,000, the remaining amount you could have taken from general reserve, but if capital reserve is there, then for premium first go for capital reserves, okay, and it should be in cash, right, okay, so चलो ये देखते हैं, so now equity share capital debited 2 lakhs, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए what he has done is securities premium को directly debit कर दिया है, in other case like we saw in the entries, क्या कर सकते हैं आप इसको, premium on buyback या buyback premium you can debit it the 40 lakhs, और फिर buyback premium को security premium में you can transfer it, तो हो वही जाता है, but that is a better way, क्योंकि आप buyback premium के नाम से you will have one account, so you will know that it was buyback premium, ठीक है, इसमें सीधा security premium if you debit it, ठीक है, that's not a good way, क्योंकि वहां पे आप you will write equity shareholders account, ये नाम आ जाएगा ना उसमें in that particular entry, ओके, so ये समझ गया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है किसको प्रीवियस प्रॉब्लम में देखते there was no premium here, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड, प्रीमियम और बायबैक डेबिट किए, राइट, फिर देन सेकेंड एंट्री में हमने
जो है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करके देन वी क्रेडिटेड प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। इन दैट प्रॉब्लम व्हाट ही हैज डन इज इसको डायरेक्टली जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को डायरेक्टली डेबिट कर दिया उसने, ठीक है। दो एंड रिजल्ट विल बी द सेम बट इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके, मतलब सर ये तरीका सही है। ये तरीका सही है कभी भी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको ओके। बायबैक प्रीमियम के नाम से एक अकाउंट है जो बाद में आप इसमें ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप जब भी आप अकाउंट देखोगे यू विल कम टू नो कि बायबैक प्रीमियम कितना हुआ। ओके, व्हेनेवर यू हैव टू सर्च इट विल बी गुड। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दिया डायरेक्ट, तो पुट सिक्योरिटी प्रीमियम हियर डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के जो क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आ जाएगा, राइट। फिगर्स विल बी सेम बट द थिंग इज लाइक फिर उसके अकाउंट्स को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल जाएगा। फिर इफ यू हैव रेलेवेंट अकाउंट नेम्स तो अच्छा रहता है कभी भी, ठीक है। जो नेट रिजल्ट भले ही सेम आएगा, डेफिनेटली दिस इज द बेटर वे टू डू। ओके, यस सर, यस सर। तो चलिए हम सॉल्यूशन बस देख लेते हैं। This is 1, this is 2, this was 3, right? तो ठीक है, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड 20,000, ठीक है। आप बायबैक प्रीमियम को डेबिट कर सकते हो 40,000, ओके, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। देन इसके बाद सेकेंड एंट्री बस आ जाएगी आपकी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू बायबैक प्रीमियम, ओके। तो बायबैक प्रीमियम कट जाएगा, इन द एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट रह जाएगा, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट 2 एंट्रीज। थर्ड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिटेड टू बैंक 2,40,000, और then last entry is always that conversion of reserves to capital. Always remember वो सिर्फ फेस वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, नेवर फॉर प्रीमियम, ठीक है। फेस वैल्यू के लिए होता है, सीआरआर अकाउंट ओनली फेस वैल्यू के लिए होता है, ओके। और सिर्फ आपको जनरल रिजर्व आपको यूज करना है। जनरल रिजर्व उसको प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है। जनरल रिजर्व का आपको प्रायोरिटी देना है। जनरल रिजर्व डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन अकाउंट 2,00,000, ठीक है। ये 3 एंट्रीज ये प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इट इज ओनली, इसमें बस इतना ही है कि शेयर्स हैव बीन बॉट बैक एट अ डिस्काउंट। तो जस्ट फॉर एन एंट्री से हमको ये बताया है कि जैसे हम वी आर सीइंग बायबैक प्रीमियम्स, राइट, व्हाट इफ द डिस्काउंट में लेता है, बस उतना ही है और कुछ नहीं, बट वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। सो अगले बार फर्स्ट क्लास में इसमें से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं बायबैक के, सो यू विल ऑलवेज गेट स्मॉलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस, ओके। तो इसके एक 4-5 प्रॉब्लम्स देख लेंगे नेक्स्ट टाइम फर्स्ट सेशन में, एंड देन वी विल मूव अहेड। और सेकंड सेशन में भी हम लोग आपका सेबी का पार्ट हम पूरा कर लेंगे, ओके। जो सेबी वाला था ना हमारा, दैट पार्ट वी विल फुलफिल, ठीक है, वो हो जाएगा। तो समझो बायबैक में ही रहेंगे हम एक दिन और नेक्स्ट टाइम। सो बेसिकली नेक्स्ट सैटरडे का जो हमारा क्लास है, सैटरडे विल फिनिश बायबैक, ओके। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे अभी आई विल क्लोज द सेशन, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि वी हैव लेस नंबर ऑफ पीपल नाउ, ठीक है। ओके सर। सो 9 o'clock को रहेगा अभी। तो फर्स्ट सेशन हम विल डू यूजुअल, उसमें सेकेंड सेशन में विल डिस्कस द पेपर। चलिए, ओके, बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।